Thank the Lord for this day again. परमेश्वर का हम एक बार फिर से आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं. We have been encouraging the church to read the Bible. और हम कलीसिया को कुछ समय से बाइबल को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं. We sing one song. और एक गीत को भी हम गाते हैं. What a wonderful treasure, the gift of God without measure. क्या ही अद्भुत ये खजाना है, ऐसा वरदान जो असीमित है. We will travel together. हम साथ साथ यात्रा करेंगे. My Bible and I. मेरी बाइबल और मैं. I trust the song remains the same. मैं विश्वास करता हूँ कि गीत वैसा ही बना रहे. Otherwise we sing, we will travel together, my mobile and I. नहीं तो हम ऐसे गाने लगेंगे, हम हमेशा साथ यात्रा करेंगे, मेरा मोबाइल और मैं. So don't be ashamed to carry your Bible. अपनी बाइबल को लेकर चलने में लज्जित ना हो. It's the word of God. परमेश्वर का कलाम है. You have an app of the Bible in your phone, I know. आपके फोन में मैं जानता हूँ बाइबल का ऐप है. That's an app, that's not the Bible. और वो एक ऐप होता है और वो बाइबल नहीं होता है. So have the word in your hand. परमेश्वर के वचन को अपने साथ में लेकर चलें. If you have problem in your eyesight, you might use it to enlarge the words. और लोगों के पास दृष्टि का भी तकलीफ रहता है, इसलिए भी वो ऐप में उसको पढ़ते हैं. So that's no problem for you. वो आपके लिए कोई समस्या नहीं है. Amen. आमीन. Shall we turn our Bibles to the book of Deuteronomy? आइए अपने बाइबलों को हम खोलेंगे व्यवस्था विवरण की किताब, the 33rd chapter. और उसका 33 अध्याय. We are reading from verse 26. और उसकी 26 आयत से हम पढ़ रहे हैं. Book of Deuteronomy, 33rd chapter. व्यवस्था विवरण 33 अध्याय, Reading from verse 26. 26 आयत से आगे. There is none like unto the God of Jeshurun, who rideth upon the heavens in thy help, and in his excellency on the sky. हे यशूरून, ईश्वर के तुल्य और कोई नहीं है. वह तेरी सहायता करने को आकाश पर और अपना प्रताप दिखाता हुआ आकाश मंडल पर सवार होकर चलता है. The eternal God is thy refuge, and underneath are the everlasting arms, and he shall thrust out the enemy from before thee, and shall say, destroy them. अनादि परमेश्वर तेरा गृह धाम है और नीचे सनातन भुजाएं हैं. वह शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देता और कहता है, उनको सत्यानाश कर दे. Israel then shall dwell to safety alone. The fountain of Jacob shall be upon the land of corn and wine, and also his heaven shall drop down dew. और इज़राइल नीडर बसा रहता है अन्न और नए दाख मधु के देश में. याकूब का सोता अकेला ही रहता है और उसके ऊपर के आकाश से ओस पड़ा करती है. Happy art thou, O Israel, who is like unto thee, O people saved by the Lord, the shield of thy help, and who is the sword of thy excellency. I and thine enemies shall be found liars unto thee, and thou shalt tread upon their high places. हे इज़राइल, तू क्या ही धन्य है. हे यहोवा से उद्धार पाई हुई प्रजा, तेरे तुल्य कौन है. वह तो तेरी सहायता के लिए ढाल और तेरे प्रताप के लिए तलवार है. तेरे शत्रु तुझे सराहेंगे और तू उनके ऊंचे स्थानों को रौंदेगा. Amen. आमीन. If you read the first verse of this chapter,
यदि 33 अध्याय के पहली आयत को हम पढ़ें, it says there, वहां लिखा है, and this is the blessing whereof with Moses, the man of God, blessed the children of Israel before his death. जो आशीर्वाद परमेश्वर के जन मूसा ने अपनी मृत्यु से पहले इस्राएलियों को दिया वो ये है। So these are the last words of Moses, और ये मूसा के आखिरी कुछ शब्द हैं, and he's blessing, speaking a blessing upon the tribes of Israel. और इज़राइल के 12 गोत्रों के ऊपर वो बरकत और आशीष उनके ऊपर में बोल रहा है। Now, even as we end the year, और जैसे अब हम इस साल के को समाप्त करने जा रहे हैं, we are always looking forward to some new blessing for the new year. हम आने वाले सालों में कोई नई आशीषों की राह देखते हैं, But don't forget the promises परंतु परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को ना भूलें and the word which has already come to you. और वो वचन जो पहले ही आपके पास आ चुका है। Even before Moses could die, मूसा की मौत के पहले ही he pronounced blessing upon the tribes. उसने इस्राएल के गोत्रों के ऊपर आशीष को बोला। Amen. आमीन। So we can carry some blessing of this 2024 into 2025. हम 2024 की कुछ बरकतों को 2025 में भी लेकर जा सकते हैं। Before the year dies, year goes off, इससे पहले कि ये साल का अंत हो, ये खत्म हो जाए, speak a blessing to the future. आने वाले सालों के ऊपर में भविष्यवाणी के वचन अभी से बोले, आशीष के वचन। Amen. मैं Say something कुछ तो बोलिए to your children, अपने बच्चों के लिए, to भविष्य your में, family, अपने परिवार के ऊपर to आशीष, your church. अपने कलीसिया के ऊपर आशीष। Amen. Amen. To the church of God as a whole. परमेश्वर की कलीसिया जो पूरे विश्व में पाई जाती है उसके लिए You know, आशीष। there is such a powerful thing God has given to us. परमेश्वर ने ऐसी सामर्थी चीज हमें दिया है। Blessings of God we can pronounce from our mouth. परमेश्वर की आशीष को हम अपने मुंह से बोल सकते हैं। Even after we have gone from this world, इस दुनिया से हम कूच करके चले जाने के बाद भी those blessings will still follow. वो आशीष के शब्द उन जीवित लोगों के ऊपर बने रहेंगे। Amen. Amen. And another thing about prayer, प्रार्थना के बारे में एक और बात, prayer always goes in advance. प्रार्थना हमेशा आपकी समय के पहले पहुंच जाती है। Amen. Amen. So the parents have prayed for the children and for their grandchildren and for जैसे कि generations. माता पिताओं ने अपने बच्चों के लिए और नाती पोतों के लिए भी प्रार्थना की, आने वाली जो पीढ़ी उसके लिए। They have gone, वे लोग तो चले गए, but their prayers still remain. परंतु उनकी प्रार्थनाएं अभी भी भविष्य में आकर खड़ी हैं। Amen. Amen. Prayers go in advance. प्रार्थना पहले ही आगे चले जाती है। You can bless the people in advance also. आप लोगों को वैसे ही समय के पहले आशीष भी बोल सकते हैं। Time had come for Moses to die. समय आया था मूसा का इस दुनिया से जाने का। He could have said, "Now don't trouble me. I know my time has come. I'm going." वो कह सकता था, अब आप लोग मुझे परेशान मत करो, मैं बूढ़ा हूं, अब मेरे जाने का समय आ गया। But he was so concerned about God's people परंतु वो परमेश्वर के उस लोगों के लिए इतना फिक्रमंद था that he spake a blessing. कि उसने जाने के पहले आशीष और आशीष बोली। And the Bible says, बाइबल में लिखा है, "Bless them that curse you." जो तुझे श्राप देते उनको भी आशीष दे। Amen. आमीन। Just now, Brother Anand said, अभी भाई आनंद ने कहा, "Love everyone, हर एक से प्रेम करना है, even if you don't feel like." यदि आपको ना लगे तो भी God's grace is there to help you to love them. परमेश्वर का अनुग्रह वहां पर तेरी मदद करने के लिए रहेगा। Amen. आमीन। So not only obey God in just few things. न केवल कुछ ही बातों में परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। So he goes on to say, वो आगे कहता है, and these are the words that Moses has blessed them with. और इन शब्दों से मूसा ने उन लोगों को आशीष दिया। And this is the blessing wherewith Moses, the man of God, blessed the children of Israel. और मूसा ने इन शब्दों से इस्राएलियों को आशीष दिया। The whole chapter is like that. और ये पूरा अध्याय वैसा ही है। But when we read from verse 26, लेकिन जब हमने 26 आयत को पढ़ा, he says, "There is none like unto the God of Jeshurun." वो कहता है, हे यशरून, इस परमेश्वर के तुल्य और कोई परमेश्वर तेरा है ही नहीं। Now, this is not a tribe of Israel. यशरून
कोई इज़राइल का कोई गोत्र नहीं है। The 12 tribes of Israel, इज़राइल के जो 12 गोत्र थे, you know them. आप उन 12 गोत्रों का नाम तो जानते हैं। Reuben, रूबेन था, tribe of Simeon, सिमोन का गोत्र था, tribe of Levi, लेवी का गोत्र था, tribe of Judah, यहूदा का गोत्र था, tribe of Zebulun, और जबलून का गोत्र था, tribe of Issachar, और इसाकार का गोत्र था, tribe of Dan, और दान का गोत्र था, tribe of Asher, आशेर का गोत्र था, tribe of Naphtali, नफ्ताली का गोत्र था, tribe of Gad, और गाद का गोत्र था, tribe of Joseph, और यूसुफ का गोत्र था, tribe of Benjamin. बेन्यामीन का गोत्र था। These are the 12 tribes. और ये 12 गोत्र थे। Now what is he saying here? यहाँ पर वो क्या नाम लेता There is है none like unto the God of Jeshurun. कि यशुरून के ईश्वर के तुल्य और कोई परमेश्वर नहीं है। Very few people name their children Jeshurun. बहुत कम लोग अपने बच्चों को यशुरून नाम देते हैं। And even if you have named them, do you know what it is? लेकिन यदि हम कोई भी नाम भी यदि देते हैं तो क्या उस नाम का अर्थ हम समझते हैं? Jeshurun means the upright one. यशुरून का मतलब है वह जो खरा है, Dear and upright, जो प्रिय People. और खरे लोग, the blessed one. जो धन्य लोग हैं। Actually, वास्तव में he is talking to Israel. वो इज़राइल के लोगों से बात कर रहा है। This name is a sort of a pet name for Israel. ये इज़राइल के लिए जैसे घर का एक प्यार से बुलाए जाने वाले नाम के रूप में बोल रहा है। You have a name, but they call you something else in the house. आपका एक प्रमाण पत्रों में कुछ नाम अलग है, लेकिन घर में लोग आपको प्यार से कुछ और बुलाते हैं। Guddu. गुड्डू बोल देते हैं। And when he grows up also, he is still Guddu. लेकिन वो बड़ा हो के बूढ़ा होते तक लोग उसको हे गुड्डू बोलते हैं। Chotu, छोटू, Lalu, लालू, that remains with him. वो नाम उनके साथ जैसा चिपक जाता है, Because that name was given with a lot of affection. क्योंकि बड़े लगाव और लाड़ के साथ वो नाम से लोगों ने बुलाया था। So this is a poetical rendering for Israel. ये इज़राइल के लिए एक काव्य रूप में कहा गया शब्द है। The one who is so affectionate. जो इतना प्रिय है, With a lot of affection he is talking. और बड़े लगाव के साथ वो उसे बोल रहा है उस नाम को। There are other names for Israel. इज़राइल के दूसरे भी नाम थे। And Jacob. याकूब के नाम से भी Israel इज़राइल, is also known as Jacob. याकूब भी कई जगह इज़राइल के लिए लिखा हुआ है। And then he says the promised land. और वो प्रतिज्ञा का देश भी उसे बोला गया है। They call it land of Canaan. कनान देश भी बोलते हैं। But still this new word has come in here. यहाँ पर एक हम नया शब्द देख रहे हैं। And Moses is ending his blessing by blessing the whole nation. और पूरे राष्ट्र को आशीष देने के बाद अब मूसा अपने आशीष के अंत में आया है जो राष्ट्र को दे रहा है। After blessing all the tribes, पूरे गोत्र को अलग अलग आशीष देने के बाद now he sees the nation as a whole. अब वो संपूर्ण इज़राइल राष्ट्र के ऊपर बोल रहा है। And he's speaking that affectionate word, Jeshurun. और उस देश को कहता है हे यशुरून। Hallelujah. A word which came out of his, a word which is so affectionate to God. वो एक ऐसा नाम जो परमेश्वर को उस देश के लिए प्यारा लगता है। Dear and upright one. एक बहुत ही प्यारा, प्रिय और खरा, A word of love and affection. प्यार से भरा हुआ शब्द, As if he is calling them by their pet name. जैसे कि मूसा उनके घर के नाम से उस देश को बुला रहा है। Earlier, if you read about that word, you find that he's talking about Jeshurun has become fat and he's rebelled. और इसके पहले यदि आप इस नाम को पढ़ेंगे आप पाएंगे यशुरून मोटा तगड़ा हो गया है और बलवा करता है, ऐसा लिखा है। He's talking about Israel. इज़राइल के बारे में ही। Now he's changed the tone completely. लेकिन यहाँ पर
वो पूरे अलग एक सुर में मूसा कह रहा है। In spite of Israel's rebellion and grieving God, इज़राइल के बार बार विद्रोह करने और परमेश्वर को शोकित करने के बावजूद भी God remembers Israel as his own child. परमेश्वर इज़राइल देश को अपने बच्चे के समान याद करता है। Amen. मैं